ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਈ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਚਲ, ਮੈਂ ਜਗਰਾਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਬਾਕੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਈ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੂਜਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣੇ ਫਿਰੋ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣੇ ਫਿਰੋ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲ 22 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ % ਤੇਰਾ, ਜਾ ਘੇਰ ਲਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਸੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਨ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਫਾ ਚੋਖਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸੰਦ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਆ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਈ ਇੱਕ ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਹਰਾਂ ਧਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ
ख्याल ही दुनियावी है, उन्हें असीस भी दुनियावी देनी। ਜਿਹੜਾ अजे दुनिया की मोह ममता ਧੀਆਂ पुत्रां विच अड़िया उन्हें उत्थों तक ही असीस देनी है। पर तुसी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं पढ़ो, सुनो, मत्था टेकदे आपां, तुसी कित्ते पढ़ो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भी सतगुरां ने कहा होवे भी तेरी जेड़े पुत्र धी ने उन्हां दी उम्र लंबी होवे। गुरु ऐसी सीस देंदा ही नहीं। पता है भी जेड़ा काम होण ही नहीं वाला, गुरु एवें सानू दुनियावी झूठियां गल्लां बातां नहीं दसदे। हाँ, गुरु असीस देंदे ने केड़ी कि निमख ना बिसरो तुम को हर हर। तुसी जिन्नियां नूं देहधारियां नूं को मत्था टेकदा है, कोई ऐसा देहधारी विखाओ जिहदे मूँहों ये निकले तैनूं रब चेते आवे, तैनूं गुरु दा सिद्धांत ना भुले। देंदा कोई? पखंडी साहब यही कहते ने भी ये आ गया है, हुण जिंदगी भर मेरे डेरे चों बाहर ना निकले। वो कहते भी घेर लो। फिर वो दुनियावी गल्लां बातां दी ऐसी चमक दमक सानू दिखाउंदे, तू जींदा रवे, कारोबार तेरा वध जाए, आओ जे आओ जे। ते असी भी दुनियावी, असी इन्ने ते खुश हैं भी जिन्हें सानू सीस दे दिते भी तेरा कारोबार वध जाए। असी कहने बाबा जी ने प्रवचन किए, हुण हथ ते हथ धर के बह जाओ, आप ही वध जाना। नहीं वधना। बाणी तां कहंदी भी घाल खाए किश हथों दे तां गल बननी। असी सोचते हैं भी बाबा मूँह तो प्रवचन कर देवे ते बस सानू लोड़ ही ना पवे। इदां नहीं गल बननी। होया कि हुण उडारी दुनियावी सी, फर्शी उडारी है, वो अर्श की गल ही किवें करनगे? नहीं करनगे। हुण ये सारे फर्शी सन जिन्ने गुरु बने हुए सी। ते जदों भाई मक्खण शाह मत्था टेकण ते कहन लगे, भाई मक्खण शाह तेरा होर कारोबार वध जाए। ते मन च भाई मक्खण शाह दे विचार आई भी मेरा तां गुरु ये कहंदा भी सिखा तू निहाल हो जाए, तैनूं रब चेते आवे। ये सारे जिन्ने बैठे हुए ने ये कहंदे कोई कारोबार वध जे, तेरे धीआं पुत सुखी होण, तू जवानियां माणे, तू आ करे, तू ओ करे। मेरा गुरु तां दुनियावी असीस देंदा ही नहीं जिहड़ी ये दे लै रहे ने। ते मानू ये गल जची भी नहीं, ये पखंडी कोड़मा जिन्ना इकट्ठा होया है। पुछद्या पछाउंद्या गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह तक पहुँच गए। होया वही जो भाई मक्खण शाह नूं पता सी भी मेरा गुरु वो दुनियावी उडारी वाला नहीं जिद्दां दे ने। इन्हां नूं पता है भी लोकां दी रुचि आ है, ते जिद्दां दी रुचि उन्हां नूं उदां दी गल करके खुश कर दिओ बस। हुण बाणी पढ़ो, मैं बेनती कर रहा, बाणी विच किते विखाओ बाणी पढ़न वाले नूं गुरु ये सीस देंदा होवे भी तैनूं तेरो कारोबार वध जाए। गुरु जदों भी असीस देगा वो आत्मक पक्ष तो यह देगा भी भलिया तैनूं रब ना भुले। क्योंकि दूसरा जो कुछ है वो मंगे दा फायदा की, जिस मंगे नाल सानू अध्यात्मक पक्ष तो लाभ ही नहीं होना। ते बाणी नूं पढ़ो, बाणी विच हवाले ने। सिखा जदों तू गुरु कोल आउणा है ना, जदों तू गुरु कोल मंगना है ते की मंगना है गुरु नूं पुछ। तैनूं नहीं पता, तू जदों मंगना वा तू अद होर माया मंग लेगा, होर सुख मंग लेगा। यही मंगते हैं ना असी। अज तक देखो गुरु घरां विच ग्रंथी सिंह अरदासां करदे, कोई विरला भागां वाला होवेगा जिहड़ा ये कहे भी ग्रंथी सिंघो मेरी अरदास करो मैनू परमात्मा दा नाम ना भुले। कोई मिलदा है? बड़ियां बड़ियां लंबियां लिस्टां, महाराज फलाणे नूं पोतरे दी दात दिओ, फलाणे दा कारोबार च वाधा होवे। ये कुछ असीं मंगदे आ। पर बाणी पढ़ीए ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे बोल ने, मांगना जी मांगण नीका। की चंगा है जी मंगना? हार जस
गुर ते मंगना। किन्ने कू असीं मंगण वाले भी सतगुरु तुहाडे कोल आए आ, सानू परमात्मा दा जस, परमात्मा दी सिफत, परमात्मा दी वडियाई करन दी दात दे। असीं रब दा जस करन लग जाइए। असीं मंगदे ही नहीं, असीं मंगदे ही वो कुछ जो सानू चाहिदा है, चंगा लगे, जो इत्थे काम आउण वाला है। असीं रब दी वडियाई तो की लैना है? नहीं। मैं बेनती कर रहा भी गुरु ये दुनियावी गुरुआं वर्गियां सीसां नहीं देंदा भी तेरी पीढ़ी इन्नी लंबी हो जाए, आ हो जाए, ओ हो जाए, तू जवानियां माणे। और की ये शब्द कहण नाल जिस तुसीं मापे ही बच्चिआं नूं सीस देंदे भी तू वधे फुल्ले जवानियां मान, की वो सदा जवान रहिंदा है? अक्सर जिहड़ा कुदरत दा नेम है जवानी तो बड़ेपा, वो तो आउणा ही आउणा है। ते गुरु दुनियावी गल इदां दी करदा ही नहीं जिहदे विच लाभ कोई नहीं। गुरु सीस दिंदा है पर वो ये दिंदे ने भी पूता माता की असीस निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। गुरु देंदा है असीस पर वो सीस देंदा भी तैनू रब ना भुले। और ये असीस काम भी आउण वाली है। कोई माँ, कोई प्यो, कोई बजुर्ग विखाओ जेड़ा सीस देवे ते कवे पुत्र तैनू रब चेते आए। असी दुनियावी हाँ, सुरती बिरती दुनियावी है। और दुनियादारी दा जो को जो असी मंगदे हां उहदे च असी खुश भी हुन्ने हां। इदां दीयां सीसां दी शैबर लाउण वाले बकाला साहब दी धरती ते गुरुआं दी मंडी लगी। पर उहदे विचों जदों भाई मक्खण शाह नूं सच्चा प्रतीत होया ते फिर उन्हां कोठे चढ़ के ना, कोठे उच्ची छत ते चढ़ के एक गल कही सी बई साध संगत इन्हां दंभियां पखंडियां नूं मत्थे ना टेको। आ खरा गुरु नानक साहब दे घर दा 9वां वारस सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब लभ गया। आओ टेको मत्था ते जिंदगी दा पार उतारा होएगा। उन्हां दे बोल सन गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। तो गुरु सवारी साध संगत धीर मल हुण जिस बंदे दे मन विच एडी सदर मैं तां गुरु बनिया ही बनिया, हुण ओदियां सारियां आसां उम्मीदां ते पानी फिर जाए इक्को दम, ते ओदे मन ते की गुजरी होएगी भी कमाल होगी भी भाई मक्खण शाह ने मेरा सारा बनिया होया मसला पानी फेर के रखता, इन्हें बड़ी माड़ी कीती। हुण होया कि जिहदी सरकार दे नाल बैठनी उठनी है, जिहदे पिठ ते सरकार खड़ोती है ना, हरकत तो ही इदां दी करेगा, दूजा नहीं। दूजे नूं पता है भी मेरी किहड़े भाग पुगेगी तुलेगी नहीं। जिहदे पिछे गौरमेंट कंड ते खड़ोती फिर वो की करदा है, वो कहंदा भी कोई गल नहीं, अपने नौकर नूं अल्लाशेरी देनी भी मार गोली, मैं खड़ोता, मैं आपे सिंज लांगा, निबड़ लांगा। धीर मल नूं गौरमेंट दी वक्ती तौर ते उस वक्त दी सरकार दी शह सी बई धीरमल असी तेरे नाल आ, फिकर ना कर तू। उन्हें अपने मसंद दे राही गोली चलाती गुरु तेग बहादुर साहब ते, और सारा साजो समान पिटावा वो धीरमल लुट के ते बकाला साहब दी धरती तो भजन लगा। पर जुरत की गुरु के सिख भाई मक्खण शाह इत्यादक वगैरह सिखा ने उन्हें घेर लिया, सोधा भी लाया, और उथों ये धीरमल फिक्का मूँह लैके उथों नठिया। इतिहास कहंदा है बई गुरु तेग बहादुर साहब इथों श्री अमृतसर साहब, गल वखरी भी सच नूं वेख के झूठ नूं पाला है भी मेरी दुकान ना बंद हो जाए।
सच नूं वेख के झूठ थर थराउंदा कंबदा भी सच आ गया ते मैनू किन्ने पुछना है। हुण बथेरा चिर हो गया सी अमृतसर साहब दे प्रबंध संभालण वाले मसंदां नूं ते जदों श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह दा आउणा सुनिया ते जे सच्चे हुंदे ते अग्गों जाके गुरु जोत नूं जी आया कहिंदे आओ महाराज धन भाग ने तुहाडे दर्शन। पर ऐसा माया दी ममता ऐसी सिर चढ़ बोली बई वो ममता चंगी लगी माया दी, गुरु चंगा नहीं लगा। ते उन्हां मसंदां सोचिया भी जे सतगुरु आ गए प्रबंध सारा सूझवान सुचज्जे सिखां दे हत्थ विच सतगुरां दे देना है ते साडा जिहड़ा इत्थे मनमानियां चल रहीआं ने ते ओहदा की बनेगा। उन्हां ने दरवाजे ही भेड़ लै बंद कर लै ते गुरु तेग बहादुर साहब कुछ समा अज भी वो स्थान सतगुरां दी चरण छो प्राप्त। तुसीं सचखंड श्री हरमंदर साहब जाओ, श्री अकाल तख्त साहब तो चंद कदमां दी विथ ते वो स्थान अज भी मौजूद है जिथे कुछ समा गुरु तेग बहादुर साहब विराजमान रहे पर मसंद ना आए। इथों सतगुरु वल्ले पिंड नूं चले गए ते वल्ले पिंड दी सूझवान संगत ने सतगुरां नूं जी आया कहा। इधर भाई मक्खण शाह ने जिहड़े मसंद सी उन्हां नूं दबकाया भी ये तुहाडे लई माड़ी गल है, तुसीं गुरु दा दिता खा रहे हो। गुरु जोत आए ते तुहाडे कोल इन्ना भी नहीं सरिया पुज्जिया भी 4 कदम अगे हो के गुरु नूं जी आया कहिए। युरत रखदे सी भाई मक्खण शाह गुरु दे सिद्धांत दे मुतलक। और इथों मसंद भाई मक्खण शाह दे कहण ते वल्ले पिंड पहुंचे। अपनी कीती दा पछतावा सिर्फ बाहरों अंदरों नहीं। ते जदों पहुंचे गर्दनां इन्हां दियां झुकियां होईयां, निगाह इन्हां दी भुंजे जमीन ते महाराज ने फिर बोल कहे सन मसंदो तुहाडी इस करतूत नूं इस कर्म नूं वेख के लगदा नहीं भी तुसी श्री अमृतसर साहब दे रहण वाले होगे। इत्थे रहना, बाणी दा कीर्तन होना, गुरु दी गल होनी ते कमाल दी बात है भी जो गुरु कहिंदा है वो किणका मात्र भी अंदर ना होवे, ओहदे बिल्कुल सारा कुछ ही उल्ट होए। सानू नहीं लगदा भी तुसी श्री अमृतसर साहब दे रहण वाले मसंद हो, क्योंकि जिहड़ा अमृतसर साहब रहण वाला है गुरु दी नगरी च रहण वाला है। कमाल दी बात भी उहदे अंदरों अजे तक तृष्णा दी आग ही ना बुझी होए। हजूर दे बोल सन नह मसंद तुम अमृत सरिये तृष्णा अगन के अंतर सड़िए। लगदा नहीं तुहाडी इस रहनी बहनी सहनी वेख के गलबात भी लगदा नहीं भी तुहाडे अंदर कोई गुरु दी गल वसी है। हुण शरीर करके तो भी बाणी दी गल गुरु दी गल करदे होणगे, पर गुरु नूं कौन पाउंदा है जिहड़ा गुरु दी विचारधारा दे अनुकूल जीवन बन गया, वो पाउणा है गुरु नूं। सतगुरु वल्ले नगर तो फिर बकाला साहब, बकाले तो सतगुरु जी श्री कीरतपुर साहब। ये 1665 की घटना है ते श्री कीरतपुर साहब तो नाल ही कहलूर की रियासत है। राजा दीप चंद सिंह ये भीम चंद होरां दा वड्डा वडेरा सी। कहलूर की रियासत सतगुरां ने इस रियासत विचों राजे दीप चंद दे कोलों माखोवाल पिंड नगर की जमीन बै खरीदी, जिथे अज श्री आनंदपुर साहब वसिया है ना। ये पुराने रिकॉर्ड के मुताबक माखोवाल नगर की भोए जमीन सी, कहलूर रियासत का यह टुकड़ा सी।
ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਬੈ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਖੋਵਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1665 ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। 1665 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਮਾਯੂੰ, ਅਕਬਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ, ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਤਸਵੀ ਤੰਗ ਦਿਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ 1658 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਦਰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤਖਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮਰੂ ਤੇ ਤਖਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖਫਾ ਹੋਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1658 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੈਦ। ਉਹਨੂੰ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪਿਆ ਦਿਆ ਕਰ। ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਂਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਾ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਇਹ ਮੁਤਸਵੀ, ਕਿੱਡਾ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਉਹ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੈਦ 'ਚ ਹਾਂ
मैं उन्होंने कुरान दियां आयतां पढ़ा दिया करांगा। ते अगों जवाब सी भी तेरे वर्गे पागल कोल मैं अपनी औलाद नूं नहीं भेजना। औरंगजेब दे बोल। और अपनी भैन नूं कतल अपने हत्थीं, भरावां नूं अपने हत्थीं कतल, अपने बाप नूं भी अपने हत्थीं कतल करन वाला यह शख्स जदों हिंदुस्तान दे तख्ते ते ईस्वी सन 1658 नूं ये बादशाह बनदा है ते इहदे अपने धर्म दे मुसलमान लोकां विच भी इहदे प्रति कोई लगा नहीं सी, नफरत सी भी जिहड़ा अपने जायां दा, अपने मापियां दा, अपने भैणां भरावां दा नहीं सका बनिया, इन्हें उन्हां नूं कतल करता है। प्रजा सियाणी सी, वो कहण लगे भी इहदे नेड़े ना होयो, इन्हें साडा तुहाडा भी लिहाज कोई नहीं करना। हुण लोकां विच हरमन प्यारा बनना एक बादशाह ने, ते हुण तुसीं वेखदे हो भी हरमन प्यारे बनने वास्ते ना भी लोग चलो दूजे धर्मां दे नहीं, मैनू कम सो कम मेरे अपने धर्म वाले तां कहना भी क्या बात बड़ा चंगा बादशाह है। ते फिर वो कहेगा भी दूजे जिहड़े घट धर्मां दी गिनती वाले लोग ने फड़ के उन्हां दे घर साड़ दिओ, अग्गां ला दिओ, कतल कर दिओ, ते कम सो कम मैनू मेरी बरादरी दे मेरे धर्म दे लोग चंगा कहन लग जाणगे। ये नीति अक्सर राजनीतिक लोग वरतदे ने, हुण तक वरतदे ने। जिहड़ी औरंगजेब वरतन जा रहा है ना, बई मेरे तो मुसलमान भी पिछे हट गए, क्यों मैं अपने बाप नूं, अपने भरावां नूं, सारियां नूं अपने हत्थीं कतल कीता है, ते मैं हरमन प्यारा लोकां च बनना है। हरमन प्यारा बनने वास्ते वो कहता कोई गल नहीं, मथुरा का मंदिर ढा दिओ, 5-7 होर मंदिर ढा दिओ, कोई गल नहीं, मेरा ही राज है ना, फड़ के 5-7 कतल भी कर दिया करो, कोई नहीं पुछण वाला। मैनू इस्लाम की बहु गिनती की मदद चाहिए और ये तशद्दद शुरू होया है। इत्थे मैं इतिहास की लड़ी नूं गुरु सवारी साध संगत रोकना चाहना। कल नूं आपां इस तो अगलेरा पक्ष वाचांगे भी एक पासे राजनीतिक जुल्म की इंतहा कर रहा है और सवा मन जंजू गले विचों उतार के उन्हां नूं कतल किया जा रहा है, ते एक पासे धर्मी है जिहदा बोल है भी असी बांह फड़ीए बांह, और असी ये बांह नहीं छड्डांगे, बेशक असी अपना सीस साडा लग जाए असी ला देंगे, पर ये फड़ी होई निमाणियां दी बांह असी नहीं छड्डांगे। तो देखते हैं उस दयालु कृपालु सतगुरु जिन्हां ने धार्मिक आज़ादी लैके दिती, बई हर एक बंदे नूं अपने धर्म विच जीउण दा अधिकार है, वो खुल दिली नाल अपने धर्म की गल कर सकदा है, सुन सकदा है, सुना सकदा है, ओदा धर्म का अधिकार कोई भी नहीं खो सकता। गुरु ने धार्मिक आज़ादी दवाई है, तो मैं अज भी बेनती करांगा जिन्हां नूं दवाई है ना, चलो असी नहीं कहिंदे भी वो रोजाना ही मंदिर का टल खड़का के धन गुरु तेग बहादुर साहब कहन, ना ही असी उम्मीद रखते हैं भी वो कहणगे, पर कम सो कम कल दे दिन मंदिर का टल खड़काउण तो पहलां ये मेरे वीर जिन्हां दी धार्मिक आज़ादी गुरु तेग बहादुर पातशाह ने दवाई, वो एक बार अपनी जुबान तो गुरु तेग बहादुर साहब दे शुक्रगुजार जरूर होण। एवें गल्लां नाल इधर नूं तुर पे उधर नूं तुर पे जी असी रेणुतार यात्रा लैके चले हाँ, इदां नहीं करजे उतरदे हुंदे। चलाक नीति नाल नहीं कदी भी ये गल्लां पुगदियां। ईमानदारी नाल तुसी गुरु तेग बहादुर साहब नूं उन्हां दे सिद्धांतक इस पक्ष नूं उजागर करो, गल तां नहीं। तो मेहर करन गुरु सिखां दी तां गुरु नानक दी 9वीं जोत ने, इस सिख जगत ने तां दुनिया भर विच अपने सतगुरां दी उस कुर्बानी नूं चेते करना ही करना है, पर जिन्हां दे धर्म दी खातर ये कुर्बानी हुई है, वो भी मंदिर दे टल खड़काउण तो पहलां एक बार गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह दा नाम
अपनी रसना तो जरूर लैन। एडे नशुकरे नहीं होना चाहिए। और वो मेरियां भैणां जिन्हां दे शीशे सामने खड़ो के अपनी मांग विच संधूर भरदियां ने, वो भी गुरु तेग बहादुर साहब नूं जरूर चेते करन भी सतगुरु ये शीशे सामने खड़ो के भरिया जा रहा संधूर तुहाडी कुर्बानी दी बदौलत है। वरना कवि संतोख सिंह नूं पुछो, वो कहिंदे छाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती, होवती कुचीलता कुतेबन कुरान की, पाप परपक जाते धर्म तुजक जाते, सहत विधान की, देवी देव देहरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पै कृपा निदान की। लोड़ है सतगुरां दी उस शहादत नूं असी चेते करिए और गुरु मेहर करन कल नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह दे इस शहीदी साके नूं आपां इस तो अगलेरी लड़ी नूं बाचांगे। सनिमर बेनती है, आओ गुरु सवारियां दे पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्रवण करिए। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।